ഹലോ പീപ്പിൾ വാട്സ്ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിനയവാരെ ദമ്മാലു വ്ലോഗ് എന്നൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. മലയാളിക്ക് എന്താടാ കേട്ടോ, മലയാളി പുലിയാടാ. ചുമ്മാ സട്ടക്കുട്ടം തുണർന്നാൽ അട്ടപ്പട്ടലം നിന്റെ കഥ കഴിയും പോടാ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ്, 26 ജനുവരി ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മുടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഈവനിങ് വാക്ക് പോയി വരാം. ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് വാക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് വിഠലിൻ്റെ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങളൊരു ഈവനിങ് വാക്ക് പോകാൻ പോകണം. അവിടെ ഇതുവരെ മുഴുവൻ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയിട്ടില്ല, ആരെയും കടത്തണില്ല. എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ആണ് പ്രവേശനം. ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണ് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ. അതും മുഖദർശനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ വിഠലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡുരംഗ് വിഠലിൻ്റെ കാലുമേ നമുക്ക് നമിക്കാം. അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ അമ്പലം പോലും അങ്ങനെയില്ല ഈ മുഴുവൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ. ഈ അമ്പലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാലുമേ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അമ്പലം. പക്ഷേ കൊറോണ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കാരണം ഇപ്പോൾ മുഖദർശനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുഖദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ദർശിക്കണേ, ദൂരെ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 15 ഫീറ്റ് ദൂരെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ദർശിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഈ മുഖദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പുത്തിരിയല്ല, കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ദർശിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ മുഖദർശനം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലൊരു പുതിയ വിശേഷമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കാറായിട്ടില്ല, കാരണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൺലൈനിൻ്റെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ പാസ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത്. വെറുതെ ഇന്നൊരു ഈവനിങ് വാക്ക് പോയി വരാൻ. വീഡിയോ മുഴുവനില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാല് തുറന്നപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ശിവാജി ചൗക്ക് വരെ പോയ വീഡിയോ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വഴിയിലേക്ക് കയറി പോണ വഴി അതും വന്നിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്നാണ് വീഡിയോ തിരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനും വന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക. വിഠൽ ഭഗവാന്റെ കഥാചരിത്രം ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മലയാളത്തിലല്ല, ഹിന്ദിയിലാണ്. എനിക്കത് മുഴുവനായിട്ട് പറയാൻ മലയാളത്തിൽ ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഹിന്ദി കഥയാണ് ഇട്ടേണത്. അതെന്താ വെച്ചാൽ മലയാളികളും ഹിന്ദിയും പ്രേക്ഷകരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ഹിന്ദി കഥയായിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തത്. कथा ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण के समय पर एक राक्षस था जिसका नाम था काल्यवन, और उसे वरदान था कि भगवान के कुल यानी यदुवंश में उसके द्वारा भय उत्पन्न होगा, और इसीलिए उसने एक बार द्वारिका पर आक्रमण किया. तो भगवान ने उसको मिले वरदान का सम्मान करना चाहा. तो भगवान उसके सामने महल से निकले और भागने लगे. काल्यवन के अनेक बार ललकारने पर भी वे भागते गए और भागते भागते एक गुफा में जाकर छुप गए, जहां एक व्यक्ति सो रहा था, और वो थे राजा मुचकुंद, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी और कई वर्षों तक युद्ध किया, जिससे थककर असुर परास्त हुए. और राजा मुचकुंद के इस प्रताप से देवताओं ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर मुचकुंद राजा ने सोने का वरदान मांगा, क्योंकि वे भी बहुत थके हुए थे. और साथ में ये भी कहा कि यदि किसी ने मेरी नींद से मुझे जगाया तो मेरी दृष्टि उस पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाए. और ये वरदान प्राप्त कर वे सो गए. काल्यवन वाली जो ये घटना है, ये घट रही है द्वापर युग में. तब तक राजा मुचकुंद गुफा में सो रहे हैं, जिनके बाल, दाढ़ी, नाखून सब बहुत बढ़ चुके थे. अब जब भगवान उस गुफा में आते हैं तो अपना उत्तरीय मुचकुंद पर डालकर छुप जाते हैं. तब पीछे से आता है काल्यवन, जो भगवान के उत्तरीय को देखकर उसे खींचता है, और राजा मुचकुंद को अपना शत्रु कृष्ण जानकर उन्हें लात मारकर युद्ध के लिए ललकारता है, जिससे मुचकुंद उठते हैं, और उठते ही उनकी दृष्टि पड़ने से काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो जाता है. तब भगवान मुचकुंद के समक्ष गए और उनका उद्धार करना चाहा. इस कारण भगवान ने उस पर अनुग्रह किया, और भगवान के सुंदर रूप को देखकर मुचकुंद इतना प्रसन्न हुआ कि उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप जिस रूप में मेरे सामने इतने प्रसन्न वदन मुख मुद्रा को लेकर खड़े हैं, वैसे ही मेरे सामने खड़े रहिए. कृपया ये वरदान मुझे दीजिए. तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा ये वरदान मैं अगले जन्म में पूरा करूंगा. उन्होंने पुंडलीक के जन्म लिया पंढरपुर में.
जो जन्म से बहुत नालायक निकला। अपने माता पिता का अपमान करना, उनकी आज्ञा का पालन न करना, उनको दुख देना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, वो ये सब करता था। माता पिता ने सोचा कि बड़ा होगा, विवाह होगा तो शायद सुधर जाएगा, परंतु विवाह होने के पश्चात भी वो वैसा ही रहा, बहुत बुरा, पापी और पातकी बन गया। तब दुखी माता पिता वहां से यात्रा हेतु काशी चले गए, और वो भी पैदल। और इधर पुंडलीक भी अपने मित्रों सहित घूमने के लिए घोड़ा गाड़ी करके काशी के लिए निकलता है। मार्ग में माता पिता को देखकर भी गाड़ी में नहीं लेता और आगे बढ़ जाता है। आगे जाने पर मार्ग में आता है कुक्कुट मुनि का आश्रम, जो बड़े महान योगी थे, जहाँ पर वे सभी रुकते हैं। रात में जब सब सो रहे थे तो 3 नव युवतियां वहां आती हैं, जो अत्यंत निस्तेज, कुरूप थी, मलिन थी, वहां आई और झाड़ू से पूरे आश्रम को उन्होंने साफ कर दिया। गोबर का लेप लगाया, सुगंधित द्रव्य लगाया, आश्रम को पुष्पों से सजा दिया। और जैसे ही उन्होंने आश्रम को स्वच्छ किया तो वे अत्यंत ही सुंदर, रूपवती और तेज से युक्त हो गई। उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा और ये सब पुंडलीक देख रहा था। और फिर उनके निकट जाकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं? जिसके उत्तर में वे कहती हैं कि तुम साधु निंदक हो, बड़े पातकी, माता पिता को कष्ट देने वाले हो। तब उनके ओज युक्त काया और सत्य व प्रभावी वचनों को सुनकर पुंडलीक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने उनसे पूछा कि आप ही बताएं कि मैं किस प्रकार पश्चाताप करूं। इस पर वे कहती हैं कि सद्गुणी बनो, अच्छा बर्ताव करने वाले बनो, माता पिता की भली भांति सेवा किया करो, भगवान की पूजा करो, उनके भक्त बनो और भक्तों की यानी वैष्णवों की सेवा करो। और फिर तब आगे वे बताती हैं कि हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं और हम यहाँ पर आकर झाड़ू लगाती हैं, सफाई करती हैं, जिससे यात्रियों द्वारा हमारे भीतर छोड़ा गया पाप नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है और हम अपने स्वरूप में पुनः वापस आ जाते हैं। आप भाग्यवान हैं जो कुक्कुट ऋषि के आश्रम में हैं, क्योंकि वे भगवत भक्त हैं, वैष्णव हैं। तब अगले दिन जब पुंडलीक के माता पिता, जो कि पैदल चलकर वहां आ रहे थे, आश्रम में पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर पुंडलीक उनके चरण पकड़ लेता है, पश्चाताप करता है और कहता है कि मुझे क्षमा करें, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। और फिर अपने माता पिता को घोड़ा गाड़ी में बैठाकर वापस घर लेकर आता है और माता पिता की सेवा अब वो इस प्रकार करने लगता है कि शुद्ध भक्त बन जाता है। और ये पुंडलीक हैं राजा मुचकुंद। जब रूठी हुई रुक्मणी देवी को मनाने भगवान दिंडीरव वन आते हैं, रुक्मणी को मनाते हैं, समझाते हैं, पर वे वैसे ही गुस्सा रहती हैं, नहीं मानती, तपस्या करती रहती हैं। इसीलिए आज भी पंढरपुर में जो रुक्मणी मैया का विग्रह है वह साथ में नहीं है, उसी भाव में है, क्रोध के भाव में है और थोड़ा दूरी पर है। तो जब रुक्मणी मैया नहीं मानी, रुक्मणी नहीं मानती, तो भगवान सीधे आते हैं पुंडलीक के घर में। जहां चारों ओर अंधेरा था और पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त था। और अब रात्रि का समय था तो उनके पैरों की मालिश करके, पैर दबाकर उन्हें सुला रहा था। तभी भगवान घर में प्रवेश करते हैं तो पूरे घर में प्रकाश हो जाता है, जिसे देखकर पुंडलीक आश्चर्य में भरकर पलटता है तो देखता है कि भगवान खड़े हैं, जो प्रेम से हंस रहे हैं। घुंघराले बाल उनके मुख से होते हुए कंधों पर आए हुए हैं। कमल सदृश उनकी आंखें उसे प्रेम से निहार रही थी। कानों में मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं। उन्होंने पीतांबर पहना है, गले में वैजंती माला है और वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि शोभायमान है। हाथों में बाजूबंद हैं, कड़े हैं, अंगूठियां हैं। बड़ा ही सुंदर, हृदय को मोहित कर देने वाला दृश्य। भगवान वात्सल्य भाव से पुंडलीक को निहारते हुए हंस रहे हैं।
उन्हें देखकर पुंडलीक कहता है कि मैं अभी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, पश्चात आपसे मिलता हूँ। और इतना कहकर एक ईंट फेंक कर कहता है कि कृपया इस पर खड़े रहें। पुंडलीक भगवान का भक्त था और उनके माता पिता भी भक्त थे, वैष्णव थे, तो उनकी सेवा में पुंडलीक मग्न है, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए और रुकने को तैयार हो गए। जब माता पिता सो गए तब पुंडलीक पलटे और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान कहते हैं कि पुंडलीक, मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे माता पिता की सेवा बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। इस पर पुंडलीक कहते हैं कि साक्षात आप मेरे समक्ष खड़े हैं तो मैं आपसे क्या मांगू, मैं आपको ही मांग लेता हूं, क्योंकि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो जीवन के अंत में मुझे यहीं पर छोड़कर जाना होगा। इसलिए साक्षात कल्प वृक्ष की तरह आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं आपको ही मांगता हूं। और आप इतने भक्त वत्सल हैं कि मेरे लिए आप यहाँ आए और मुझे इतने सुंदर दर्शन दे रहे हैं। तो जिस भक्त वत्सलता के कारण आप द्वारका धाम से यहाँ मिलने आए हो, इतने प्रेम से इतना सुंदर दर्शन मुझे दे रहे हो, उसी तरह सभी भक्तों को यहाँ पर दर्शन दो। और कोई कितना बड़े से बड़ा पातकी, पापी या पतित ही क्यों ना हो, यहाँ आकर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर उसके पाप नष्ट हो जाए। तब भगवान उसी रूप में कमर पर हाथ रखकर आज भी सभी भक्तों को वहां दर्शन दे रहे हैं। अपने एक भक्त को दिए हुए वरदान के कारण आज भी वे वहां खड़े हैं। और वो ईंट जिस पर भगवान खड़े हुए, उसकी ये कथा है कि इंद्र ने अपना सिंहासन चले जाने के भय से तपस्या कर रहे एक ऋषि का वध कर दिया था। तब मरते समय उस ऋषि ने इंद्र को पत्थर यानी ईंट बन जाने का श्राप दिया। और फिर पश्चाताप करते हुए इंद्र भगवान के पास गए और भगवान फिर उसके उद्धार का उसको आश्वासन देते हैं। और ये ईंट वही इंद्र है जिस पर भगवान खड़े हुए हैं। और मराठी में ईंट को कहते हैं वीट, और इसीलिए वीट पर खड़े हुए भगवान कहलाए विट्ठल। तो ये है भगवान श्री विट्ठल। और उस स्थान को जिसे पहले दिंडीरा वन के नाम से जाना जाता था, वहां पुंडलीक ने भगवान को प्रसन्न किया। तब पुंडलीक के नाम पर उस स्थान को पुंडलीकपुर कहा जाने लगा, जो बाद में पड़ा पंढरपुर, जहां हर आषाढ़ी एकादशी पर दूर दूर से वारकरी भक्त आकर भगवान श्री हरि विट्ठल का दर्शन करते हैं। मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् आदात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि।
വിഠൽ ഭഗവാന്റെ കഥയും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയും ഇഷ്ടമായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴത്തെയും എന്നത്തെയും പോലെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. പീസ്.